So, moving towards our topic, flowchart symbols. Flowcharts explain a process clearly through symbols and text. They use special shapes to represent different types of actions or steps in a process. Lines and arrows shows the flow of steps. Table 1.1 shows some of the most widely used symbols in flowcharts. Now we learned in our previous lecture that there are different ways of making flowchart. Why flowchart is needed? We have to give some input. That input is performed with some processing task, and then we get the output. So we uses different symbols to represent the flow chart. How the process will go from by using different symbols and by using text. That is why we need flowchart symbols. Now there are different shapes that represent different actions and different processes that indicate the flow of flow chart. Okay. So moving towards the table number 1.1, you can see over here, first of all, it is mentioned a symbol, then name, and then the description of the symbol. First, you can see the first symbol over here, that is a flow line. ये जो arrow की diagram आपको नजर आ रही है, that is then इसका name होगा आपका, next line आप देखो flow line है, और इसकी description क्या है? It is used to determine the flow of steps in a flow chart. So flow line, this arrow is used to determine the flow of steps. अब आपका एक स्टेप को दूसरे स्टेप से या एक सिंबल को दूसरे सिंबल से अगर आपने ज्वाइन करना होता है तो यू हैव टू यूज दिस फ्लो लाइन. Next symbol is something like oval like shape, that is the symbol of terminal. Terminal, it indicates start and end of the flow chart. जब कभी भी आपने flow chart start करना है, आपने सबसे पहले ये symbol draw करना है और इसके अंदर start का word लिखना है, और जहां पर आपका flow chart end करेगा वहां पर again आपने ये symbol draw करना है और इसके अंदर end का symbol या stop का word आपने लिखना है. ठीक है. थर्ड सिंबल इज ऑफ प्रोसेसिंग सिंबल, दैट इज ऑफ रेक्टेंगल शेप. इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज. इसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑपरेशंस जो आपने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं या जो आप इनपुट्स ले रहे होते हो, इनपुट्स की वैल्यूज जो है वो सारा कुछ आपने इस प्रोसेस के सिंबल में लिखना होता है. Okay. Next symbol is of diamond symbol. It shows the decision making. It is a decision making symbol. It shows a conditional operation that determines which one of the two paths to take. The operation is commonly a yes or no question or a true or false test. अब ये decision making का symbol होता है, इसके अंदर जहां पर आपने decision लेना है कि whether you have to move towards the if you get the correct answer, you will pass through the arrow of yes and you will get the result. And if this required decision will be false or no, then another action will takes place. Okay, that is why you uses this symbol, that is of decision making, and it is a diamond symbol. Next is input output symbol, that is of parallelogram. It indicates the input of data from user and displaying results to user. Input output, जहां पर आपने inputs देनी है और output आपने लेनी है, वहां पर आपने parallelogram का symbol use करना है. And the next is connector symbol. Circle, round, small circle, that is of connector. If a flow chart does not fit on a page, then we use connector to connect parts of a flow chart on different pages. For example, if you are having a flow chart that is too much big and it is not adjusting on one page, then you have to connect this symbol, like you will take the symbol of connector and you will join these two flow charts so that you may get a required one flow chart and you may know the task or working of what the your flow chart is going to do. Okay, so these were a few symbols of flow chart in table number 1.1. Okay, flow line, terminal, process, decision, input output, and connector. Okay, you have to remember these symbols and its functionality as well. Moving towards the next topic, 1.2.5, examples of flowchart. In this section, we study problem solving using flowcharts. In a flowchart, input means to get data from some input device and store in computer memory. A data is in memory is given some particular name. We access data with respect to its given name to perform some computation from which results are obtained. The results are stored in computer memory and we print or display the results on some output device. Now basically they are telling the functionality of flowchart that that in our flowchart we need some input. हम कोई input देंगे, वो input जो है वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होगी. उस मेमोरी के का जो को जहां पर हम स्टोर करेंगे तो जो डाटा हम यूज कर रहे हैं, we have to give a particular name to that data.
Okay, so all the computations, all the tasks that are being performed on that given input will be now processed, and we will get the desired result in the form of output from the output devices. So all of these we have to just draw a block diagram. You can say that you have where we just needs to draw a block diagram so that you may know the functionality, that how your program is working actually. Okay, now there are a few daily life examples and a few calculated examples over here. फर्स्ट एग्जाम्पल, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फॉरेनहाइट टेम्परेचर. अब आपका टेम्परेचर दो तरह से होता है, एक सेल्सियस में होता है मतलब डिग्री सेंटीग्रेड आप जिसे कहते हो उसमें होता है, और एक डिग्री एफ लिखा हुआ होता है अक्सर, वो इट मींस फॉरेनहाइट. मतलब दो तरीके से आपके पास टेम्परेचर होता है. नाउ दे आर सेइंग यू हैव टू कन्वर्ट द सेल्सियस टेम्परेचर इनटू फॉरेनहाइट टेम्परेचर. अब इसके लिए आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा, और उस प्रोग्राम को डिजाइन जब आप करोगे तो उसकी इनपुट्स किस तरह से देनी है आपने, उसके अंदर आपने क्या डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या कैलकुलेशंस लेनी है, क्या आउटपुट आपको चाहिए, ये सारा कुछ आपने एक ब्लॉक डायग्राम के अंदर, मींस टू से एक फ्लो चार्ट के अंदर ड्रॉ करके दिखाना है. ओके, इसी तरह की छोटी छोटी एग्जांपल्स होंगी. To convert Celsius to Fahrenheit temperature, this flowchart shows that after start. अब देखें सबसे पहला यहाँ पर आपको सिंबल नजर आ रहा होगा, that is of start. मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जब कभी भी आपने flowchart start करना है या जब कभी भी आपने flowchart end करना है, you have to use this symbol. ठीक है, ये स्टार्ट का सिंबल आपको नजर आ रहा होगा पिंक में, और ये लास्ट में एंड का सिंबल भी आपको सेम वही नजर आ रहा होगा, बस यहाँ पर एंड लिखा हुआ है और यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है. सो ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करने का रूल है कि ये वाला सिंबल आपने यूज करते हुए स्टार्ट और एंड को मेंशन करना है, डिनोट करना है, अपने डायग्राम में बनाना है. ओके, this flowchart shows that after start, a computer user provides some numeric data which is stored in computer memory with the name Celsius. अब वो कहते हैं कि आपने बेसिक काम क्या करना है, आपने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लो या फॉर्मूला कह लो, कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहला टास्क तो आपका हो गया, फ्लोचार्ट आपका स्टार्ट हो गया. नेक्स्ट व्हाट डू यू वांट, अपनी कॉमन सेंस से सोचे दैट आपको एक सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए होगा, अब आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फॉरेनहाइट में, तो उसके लिए आपकी इनपुट क्या होनी चाहिए, सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए ना आपकी इनपुट. तो आप क्या करोगे, यूजर से इनपुट लोगे, यहाँ पर आप लिखोगे इनपुट नंबर दैट इज ऑफ सेल्सियस, मतलब सेल्सियस की फॉर्म में आपको इनपुट चाहिए. ठीक हो गया, और ये पैरेललोग्राम का आपने सिंबल यूज कर लिया यहाँ पर. In the next step, the result is computed by applying the formula to convert the given Celsius temperature to Fahrenheit temperature. Now, basically, you have got the temperature in Celsius, and you have to convert that Celsius temperature into Fahrenheit. So you have to you have to write the formula of Fahrenheit. Fahrenheit का formula क्या होता है, ये आप physics में भी आपने पढ़ा होगा, पिछली classes में 8th में 7th में आपने science में भी ये formulas पढ़े हुए होंगे, to convert Celsius scale to Fahrenheit. तो ये फॉरेनहाइट का ये फॉर्मूला है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32. ये आपका फॉर्मूला है फॉरेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का. तो आपने इस ब्लॉक में ये वाला फॉर्मूला लिख देना है. ठीक हो गया. अब सेल्सियस की वैल्यू आपके पास आ गई थी सेकंड स्टेप में से. सेल्सियस की वैल्यू फॉर एग्जांपल यूजर ने 5 दे दी, तो आप यहाँ पर आपकी जो बैकएंड पे वर्किंग हो रही होगी, वहां सेल्सियस की जगह खुद ब खुद उसकी इनपुट वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 9, 5 9 45 डिवाइडेड बाय 5 और एंड होल प्लस 32. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा अगले, अब यहाँ पर से आपका रिजल्ट कोई ना कोई ऑब्टेन हो जाएगा आपको. तो अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अपने फॉरेनहाइट को, मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाकर गेन किया उसको आपने प्रिंट करवा देना है. प्रिंट क्यों करवाना है, क्योंकि आपके स्क्रीन पर कोई ना कोई आपको रिजल्ट चाहिए, जो आपने इनपुट दिया उसके अगेंस्ट आपको कोई आउटपुट चाहिए, और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया यहाँ पे. ठीक है. The result is stored with name Fahrenheit. The value stored with name Fahrenheit is then displayed by using some output device. Next, the flowchart is ended. वही बात जो मैंने अभी आपको explain की. Okay, so this is a simple example to draw a flowchart, and you are converting Celsius scale into Fahrenheit temperature. Okay. अब different उसने आगे examples इसकी दी हुई हैं. मैं आपको I will tell you about few examples, and you will practice all the other examples by your own self. Okay. Second example, to find acceleration of a moving object with given mass and the force applied. अब वो कहते हैं कि आपने एक्सक्लरेशन फाइंड आउट करनी है. एक ऑब्जेक्ट है जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी आपने एक्सक्लरेशन फाइंड आउट करनी है.
विद गिवन मैस एंड फोर्स अप्लाइड। अच्छा, अब आपको ये भी फिजिक्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू M और A, ये वाला अक्सर होता है। फोर्स दी होती है, आपने मैस दिया होता है, या एक्सलरेशन, कोई भी एक चीज आपको नहीं दी होती वो फाइंड करनी है, बाकी दो चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक्सलरेशन फाइंड आउट करनी है, मैस आपको दिया हुआ है और फोर्स उस पर अप्लाइड हो रही है, मतलब F भी दिया हुआ है और M भी आपको दिया हुआ है, दो चीजें आपको दी हुई हैं और आपने फाइंड आउट करना है A मींस एक्सलरेशन। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है, जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल में भी देखा, वी विल स्टार्ट द फ्लो चार्ट, वी विल राइट स्टार्ट ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आई है, इसके अंदर आपकी इनपुट्स क्या है, व्हाट आर योर इनपुट्स, आपको क्या क्या चीजें इनपुट में चाहिए, क्या क्या रिजल्ट्स आपको चाहिए, ये सारी चीजें आपने नेक्स्ट स्टेप में, मतलब अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये सेकंड स्टेप यहाँ पर आपका अप्लाई हो रहा है कि आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉब्लम को, अब आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। ठीक है, सो इनपुट दैट इज मैस एंड फोर्स। अब आपकी मैस और फोर्स दो इनपुट आपको दी हुई है, मतलब उसने कहा कि आपको मैस गिवन है और आपको फोर्स जो है अप्लाई हो रही है, वो भी आपको दो आपको इनपुट जो है वो गिवन है। ठीक है, आपने फाइंड आउट करनी है एक्सलरेशन। अब मैस और फोर्स को आपने दोनों को इनपुट करवा लिया, अब इनकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, आप जब इनपुट में यूजर से एंटर करवाओगे। ठीक है, ये तो अभी आप फ्लो चार्ट बना रहे हो ना, जब आप एल्गोरिदम की तरफ आओगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपकी अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरह से ये वर्किंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने मैथ्स और फोर्स दोनों इनपुट करवा लिए, इन दोनों की वैल्यूज आपने यूजर से ले लेनी है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की वैल्यू उसने कह दिया 5 है और फोर्स की वैल्यू भी वो कहते हैं 5 है। ठीक है, दोनों की वैल्यूज इनपुट हो गई। नेक्स्ट आपने एक्सलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, वैसे इसका मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू एम ए, एम फॉर मास, ए फॉर एक्सलरेशन। F इज इक्वल टू एम ओवर एम ए, एम मल्टीप्लाई बाय ए। अब आपको ए चाहिए, ए इस साइड पे रह जाएगा तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा, एफ ओवर एम हो जाएगा, ए एक साइड पे रह जाएगा। ठीक हो गया। एक्सलरेशन इसका क्या फॉर्मूला बन गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब आपने मेन आपको चाहिए भी एक्सलरेशन ही थी, तो यहाँ पर आप अगले स्टेप में आपने अपने एक्सलरेशन की जो वैल्यू है उसको आपने प्रिंट करवा लेना है। फोर्स की और मास की वैल्यू ऊपर से यूजर से एंटर करवानी है और आपका जो फ्लो चार्ट होगा वो एंड हो जाएगा। ठीक हो गया, दैट इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। Third example is also quite easy to find the volume of cube. अब अच्छा आप देखेंगे इसके अंदर कि हर जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है देयर इज वन फॉर्मूला दैट इज अप्लाइड इन दीज ऑल फ्लो चार्ट। हर फ्लो चार्ट में कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई होता है तो आपकी इनपुट्स होती हैं सिंपल, फॉर्मूला अप्लाई होता है और आपका रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पर भी सेम आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्यूब है कि मतलब थ्री शेप्ड आपके पास कोई डायग्राम है, इनपुट आपने करवा लेना है एजेस, उसके मतलब एजेस बता देने हैं कि जो क्यूब है वो उसके कितने थ्री साइड्स होती हैं, तो कोई एक साइड आपने इनपुट करवा देनी है। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम जो होता है वो एज का क्यूब होता है, एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज, तीनों एजेस को मल्टीप्लाई कर देना आपस में और आपका वॉल्यूम जो है वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। एक अमाउंट आपको दी हुई है, उस पर आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करवाओगे, इनपुट करवाओगे अमाउंट को, रेट को, कि कितने रेट पर इंटरेस्ट दिया गया है और कितने कौन सा साल है, कितने सालों के लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपने इनपुट करवा ली तीनों वैल्यूज। अब इंटरेस्ट आपका फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला होता है कि जो टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, आपका इंटरेस्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, अक्सर आपको ये होता है कि जो फॉर्मूला होता है ये भी उसने क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ होता है, बस आपको सिंपल बताना होता है कि ड्रॉ करके दिखाना होता है कि फ्लो चार्ट आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। ऑल राइट, these all are the examples to find the sum, product and average of five given numbers. आपने सम फाइंड करना है, प्रोडक्ट एंड एवरेज फाइंड करनी है, तो सम के लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इनिशियलाइज 4 5 वैल्यूज आपने ले लेनी है, 5 नंबर्स वो ले रहा है तो n0 n1 n2 n3 n4 इनपुट करवा ली। उसके बाद सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, सारों को स्लम कर दिया, प्रोडक्ट है सबको मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज निकालनी है सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। 5 है आपके पास तो 5 से डिवाइड कर दिया और आपकी एवरेज सम आ जाएगा, प्रोडक्ट और एवरेज सारा कुछ आपका प्रिंट हो जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, वहां पर भी सेम इसी तरह पैरेलल एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स।
In the following flowchart, we studied that a flow between steps can depend upon a certain conditions. If the condition is true, then the flow is different from when the condition is false. A condition is always evaluated as either false or true. अब वो कहते हैं कि जब कभी भी, अभी ये तो ऊपर जो अपने फॉर्मूला ये सारे फ्लो चार्ट्स पढ़े, दैट ऑल वर द सिंपल फ्लो चार्ट बाय यूजिंग वन सिंपल फॉर्मूला. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स दैट यू हैव to decide whether the flow that you are, if whether the answer if you are getting is true, then what you will print, and if you are getting the answer false, what you will print on the screen. Okay, so first example in this conditional flow in flowchart to determine whether a given number is odd or even. अब आपके ने डिसाइड करना है कि जो नंबर आप इनपुट कर, यूजर आपको इनपुट कर रहा है, दे रहा है, कि आप वो नंबर इवन नंबर एंटर कर रहा है या ऑड नंबर एंटर कर रहा है. अब ये फ्लो चार्ट से आपने प्रिंट आउट करवाना है. तो इसका फ्लो चार्ट देखें. सबसे पहले वही चीज स्टार्ट आ गई, इनपुट आ गया आपका, नंबर नंबर एंटर करवाना है यूजर से, दैट इज वाई यू हैव टू मेक अ पैरेललोग्राम एंड यू हैव टू इनपुट नंबर दैट इज n. ओके, नेक्स्ट वो फॉर्मूला लगा रहा है यहाँ पर रिमाइंडर का. अब वो कहते हैं n मॉड्यूलस 2. अगर हम n को, मतलब कोई भी गिवन नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल गिवन नंबर 4 है, 4 का मॉड्यूलस ले लेना 2 के साथ. तो इफ ये अब उसके बाद यहाँ पर कंडीशन लग रही है. अब ये डिसीजन मेकिंग का सिंबल यूज हो रहा है, यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है. इफ रिमाइंडर इज 0, अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो फिर क्या करें, यस वाला पाथ फ्लो करेगा. मतलब ये वाली जो आपकी डायग्राम है, ये वाली ये चलेगी, और यस है, अगर यस होगा तो प्रिंट n इज इवन. तो फिर क्या प्रिंट करवा देना कि जो नंबर यूजर ने एंटर किया दैट इज एन इवन नंबर. एंड इफ रिमाइंडर इज नॉट 0, नो की कंडीशन अगर फॉल्स आ जाती है, तो देन एरो आपका हेड कहाँ पर जा रहा है, अगले पैरेललोग्राम की तरफ जा रहा है जहां लिखा हुआ है प्रिंट n इज ऑड. तो फिर आपने क्या स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है कि n जो नंबर है वो ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ से दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लिया और एंड के सिंबल के साथ आपने इसे ज्वाइन कर देना. ठीक है, अब वही चीज उसने यहाँ नीचे लिखी हुई है. इन द अबव फ्लो चार्ट, आफ्टर द स्टार्ट स्टेप अ न्यूमेरिक वैल्यू इज टेकन फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विद नेम n. ठीक है, then this value is divided by 2 and remainder is stored in memory with name rem. The to calculate the remainder, mod function is applied. We perform a conditional operation to check whether n is completely divisible by 2 or not. This is done by comparing the value of rem with 0. If rem is 0, the conditional operation gives a true value. It means that n is even because it is completely divisible by 2. On the other hand, if rem is not 0, the conditional operation gives a false result. It means that n is odd. ठीक है, अगर आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, then your required number that is given by the user, that would be an even number. And if you will not get the answer 0 in remainder, then your number will be odd number. Okay, next example, to display the larger one out of the 3 given unequal numbers. अब वो कहते हैं कि 3 आपको अनइक्वल नंबर दिए हुए, मतलब हो सकता है कि फर्स्ट नंबर आपको 5 दिया हुआ हो, सेकंड नंबर 2 दिया हुआ और फोर्थ नंबर आपको, थर्ड नंबर जो है वो आपको 10 दिया हुआ. नाउ यू हैव टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ देम. उन तीनों में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपने प्रिंट करवा लेना है. ठीक है, फ्लो चार्ट देखें इसका. स्टार्ट किया आपने, 3 नंबर्स हैं, इनपुट करवा लिए, n0 n1 n2. आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही नाम लिखो. आप abc भी लिख सकते थे, xyz भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे. ठीक है, अब उसने इनपुट करवा लिए 3 नंबर्स. नेक्स्ट वो कह रहा है लार्ज जो नंबर है वो लार्ज नंबर स्टोर करवा रहा है n0 के अंदर. मतलब ये जो पहला नंबर n0 वो ले रहा है, इसके अंदर वो लार्ज का नंबर स्टोर करवा रहा है. नेक्स्ट इज ही इज अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ओवर हियर. अब वो कहते हैं कि n1 जो है, जो आपका सेकंड नंबर था, n1 इज ग्रेटर देन लार्ज. क्या n1 जो सेकंड नंबर है वो लार्ज के नंबर से बड़ा है या नहीं है? लार्ज का नंबर कौन सा आपका? n0 का. ठीक है, तो n1 इज ग्रेटर देन लार्ज, मतलब n1 जो है वो n0 से बड़ा है या नहीं बड़ा. अगर तो बड़ा है तो प्रिंट क्या कर दे, यस लार्ज कौन सा नंबर हो गया आपका? n1 हो गया, कि n1 जो है वो लार्ज हो गया नंबर. और अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ नो, तो फिर क्या हो, यहाँ से एरो आपका नीचे आ जाता है और वो फिर कंपेयर करेगा कि क्या n2 बड़ा है लार्ज से, n2 लार्ज से बड़ा है कि नहीं बड़ा. अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो कहेगा यस लार्ज नंबर कौन सा हो गया? n2 हो गया. और अगर ये भी लार्ज नहीं है, नो है, तो फिर क्या होगा, प्रिंट लार्ज. कौन सा जो एक्चुअल नंबर आपके पास आ रहा होगा फिर वही आपका लार्ज होगा. ठीक है,
और अगर आपका यहाँ से ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहाँ से n2 अगर आपका लार्ज बनता है तो यहाँ से आपने प्रिंट लार्ज होगा और आपका एंड हो जाएगा प्रोग्राम। थोड़ा सा टेक्निकल है ये जरूर, मगर बहुत आसान है। यहाँ पर एक नंबर को आपने फिक्स कर लिया कि ये नंबर मेरा लार्ज नंबर है, उसके अप्लाई अगेंस्ट कंडीशन अप्लाई करी, फिर एक और नंबर आपने कह दिया, यहाँ उसने कह दिया पहले कि n0 लार्ज है, फिर कंपेयर किया उसने कि n0 क्या n1 से लार्ज है कि नहीं लार्ज। उसके बाद यहाँ फिर उसने कह दिया कि n1 लार्ज है, अब n0 लार्ज नहीं है, n1 लार्ज है, फिर कंपेयर किया क्या n2 से लार्ज है कि नहीं है, क्योंकि तीनों नंबर्स को कंपेयर करना है। फिर उसने कह दिया कि n2 लार्ज है, अब n1 भी लार्ज नहीं है, अगर ये लार्ज है तो प्रिंट कर दे, और अगर नहीं लार्ज तो फिर आपका n2 वाला ये n1 वाला जो नंबर होगा वही लार्ज आपका प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब ये देखें, ये ए बी सी के अगेंस्ट भी बता रहा है वो, ऊपर उसने n1 n2 बता रहा था, अब ए बी सी लिखा हुआ है, सारा फंक्शन वही परफॉर्म हो रहा है। Following flowchart shows another solution to find a maximum value among three numbers a, b and c. अब start किया, तीन inputs आ गई a, b and c. Now they are comparing if a is greater than b, अगर a b से बड़ा है क्या नहीं बड़ा, if yes तो फिर चेक करें क्या a c से भी बड़ा है कि नहीं बड़ा, क्योंकि तीन नंबर्स कंपेयर करने हैं। अब a अगर b से बड़ा है तो a को c से भी तो बड़ा होना चाहिए ना आपके a को लार्ज प्रिंट करने के लिए। तो वो कंपेयर कर लिया a b से बड़ा है कि नहीं, अगर बड़ा है इफ यस तो ये कंडीशन चलेगी, a जो है वो c से भी बड़ा है। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, आउटपुट आपकी a प्रिंट हो जाएगी कि a जो नंबर है आपका वो सबसे लार्ज है। ठीक है, और अगर a यहाँ से a b से तो बड़ा हो गया और a c से जब कंपेयर किया तो बड़ा नहीं है, अगर नो है तो फिर कौन सा नंबर बड़ा होगा, आपका c वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखें, अब a b से तो बड़ा हो गया, अब b को भी तो c से बड़ा होना चाहिए ना, b इज ग्रेटर देन c। ठीक है, अगर b c से बड़ा है तो इन आउटपुट आपने क्या कर लेना है कि b वाला नंबर जो है वो बड़ा है, क्योंकि इन दोनों में b कंपेयर हो गया, तो b बड़ा है तो आपका प्रोग्राम यहाँ से एंड कर जाएगा। Activity number 1.3, investigate both the approaches presented to find a maximum value among three numbers and compare them. Which approach has advantage over the other? Find your write your finding and discuss with your teacher. Okay, now all of these flowcharts are quite similar with each other. Only the basics is basic concept of these flowchart is that how you will present the flow of input, how you will present your program by using the steps of problem solving which we have studied in the first topic of this chapter. Okay, next is to assign grade. To assign grade to a subject based on total marks and obtain marks. Up total marks and obtain marks, the two things that you have to input, and you have to assign a grade. Grade assign karna hai, that whether the according to the marks, whether the grades are A plus, A, B, C or D. E F तक जा रहा है वो, यहाँ पे बहुत इजी सा ये फ्लो चार्ट है। You have to study this flowchart by your own self, and if there will be any difficulty you can ask me in the next lecture. Okay, next is to determine name of a weekday from a given number where weekdays are assumed from Monday to Sunday and their respective numbers from 1 to 7. Okay, वही चीज वही सारी चीजें, decision making का symbol use हो रहा है, and you have to determine the name of a weekday from a given number. नंबर असाइन किया हुआ है, अगर वन नंबर है तो मीन्स इट मीन्स दैट इट इज मंडे, इफ देयर इज टू नंबर इट मीन्स दैट यू हैव टू प्रिंट ट्यूसडे, इफ नंबर डे इज थ्री देन यू हैव टू प्रिंट वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन. ओके, ये भी बहुत इजी है. Input, you have first of all you have to input the number day input करवाना है, that either it is 1 2 3 4 कौन सा डे है. फिर डिसीजन मेकिंग आ गया, डे इज 1, अब वो डिसाइड कर रहा है कि फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट डे है वीक का, फर्स्ट डे अगर होगा, इफ इट इज यू हैव टू प्रिंट मंडे. Okay, if it will be correct then you can see that arrowhead is going towards the end. Okay,
एंड इफ द नंबर यूजर इज एंटरिंग इज 2, अगर 2 एंटर करता है तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। और अगर डे 2 नहीं है तो वो डिसाइड करेगा क्या डे 3 तो नहीं है, तो नो वाले पे जाएगा, फिर डे 3 डिसाइड करेगा। इफ इट वुड बी डे 3 then it will print Wednesday, and if it no, it will not be day 3, then it will move towards the next decision making symbol, it will move towards 4, and so on. Okay, up till day 7. Okay, fine. Now, students, please raise your questions against all these what we have studied today. And I have assigned a homework to you in the last lecture of 5 W's वाला जो था, मैंने आपको एक activity दी थी. You have done. If there is any problem, you may ask from me. Okay. Please raise your questions about today's lecture. Any questions?